Hello students, good evening. Today we'll discuss IC analysis. IC analysis is a method of analyzing the hierarchical structure of a sentence by repeatedly dividing it into two large parts, its immediate constituents, until you reach the smallest units, usually words or morphemes. आईसी एनालिसिस सेंटेंस का एनालिसिस है जो हिरार्कियल स्ट्रक्चर है हिरार्की फॉलो करता है एक सेंटेंस को जब हम एनालाइज करते हैं बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग इट इनटू टू लार्जेस्ट पार्ट। तो हम उसके लार्ज पार्ट को निकालते जाते हैं और डिवाइड करते जाते हैं, है ना, इस तरह से until you reach the smallest unit means we have to divide the sentence into two major parts, then again divide, and finally when we reach in the words, so that is called morpheme or words. These are the morpheme, right? So this is the method of IC analysis. The key principle for identifying the ICs or phrases. ICs is phrase, right? This is called phrase. IC, immediate constituent, means phrase. At each steps is grammatical coherence and substitutability, right? Substitute, we have to find out coherence and substitute, right? Here is a breakdown of steps and principles. First is the principle of binary division. First step when we take, which is called principle of binary division. पहला बाइनरी डिवीजन होता है. कैसे करते हैं? Start by dividing the entire sentence into two largest, most relevant and most grammatically significant parts. First of all, we would start by dividing the entire sentence into two largest, most relevant and most grammatically significant parts. सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे. This division is usually binary, two parts. इसके two parts होते हैं. Initial cut, right? That is, first we have to cut the sentence. In a simple English sentence, a typical S, right? That's a typical S, right arrow, NP and VP. This is noun phrase and verb phrase. Okay. The first and most important cut is usually between subject, noun phrase, sentence, then noun phrase and verb phrase. Now, the first cut, that's a noun phrase, that is subject or noun phrase or verb phrase or object, predicate. This is called subject and this is called predicate. Noun phrase is called subject and verb phrase is called predicate. Example, the old man mid ran quickly away. Now I see is 1, I see 2. The old man. So that's a one part. I see 1. Right? And then rain quickly. This is rain quickly away. Right? This is a sentence. So this way we cut the sentence. Then principles for subsequent cuts. अभी ये वाला तो क्या था? That's a principle of binary division. अब now principle of, till we have seen that principle of binary division अभी जो first step में देखा. Now we are going to see
principles of subsequent cuts. ये वाले cuts को we are going to discuss. How to do this? After the initial split, you continue the binary division for each new constituent or phrase until you are left with individual words. हमको कट करते जाना है. ये सेंटेंस है, ये नाउन फ्रेज है, दिस इज वर्ब फ्रेज, देन दिस इज डिटरमिनर, or this is prepositional phrase, again. Finally we have to reach to individual words. यहाँ तक कट करना है. The most relevant grouping कोहेरेंस को फॉलो करना है, प्रॉपर ऑर्डर. ग्रुप वर्ड्स दैट फंक्शन मोस्ट क्लोजली टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट बिफोर सेपरेटिंग देम. कैसे है ग्रुप वर्ड्स जो होते हैं वो फंक्शन एज क्लोजली टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट. जैसे प्रपोजिशनल फ्रेज, तो ये एज अ सिंगल यूनिट है ना, काम करता है बिफोर सेपरेटिंग देम, जब हम उनको सेपरेट नहीं करते तब तक. तो रूल क्या है? डिवाइड वेयर द वर्ड्स नेचुरली ब्रेक इनटू लार्जेस्ट मोस्ट कोहेरेंट सब यूनिट्स. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड वेयर द वर्ड्स नेचुरली ब्रेक इनटू द लार्जेस्ट मोस्ट कोहेरेंट सब यूनिट. तो अब हम उसको सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे. द क्विक ब्राउन फॉक्स, ये क्या है? नाउन फ्रेज है. क्विक ब्राउन फॉक्स. पहले हम क्या करेंगे? ये नाउन फ्रेज को कैसे कट करेंगे? द है ना, द क्या है? डिटरमिनर. क्विक ब्राउन फॉक्स है ना, तो क्विक ब्राउन फॉक्स ये क्या है? ये डिटरमिनर सेपरेट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नाउन फ्रेज. तो हमने डिटरमिनर को निकाल दिया और बाकी ये जो रेस्ट पार्ट था नाउन फ्रेज का ये अलग हो गया. ये नाउन फ्रेज है ना, और ये क्या है? दिस इज डिटरमिनर दी है ना, और बाकी को अलग कर दिया. अब क्या करेंगे? द क्विक प्लस ब्राउन फॉक्स, दिस स्प्लिट द मॉडिफायर्स इलॉजिकली. वो कह रहे हैं अगर आपने द क्विक को और ब्राउन फॉक्स को ऐसे कट करा तो ये गलत है, ये इलॉजिकल है. तो क्या करेंगे? क्विक ब्राउन फॉक्स डोंट फॉर्म अ नेचुरल यूनिट. तो इसको अभी रहने देंगे. अब हम सब्स्टिट्यूटेबिलिटी टेस्ट कैसे, सब्स्टिट्यूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल वर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल वर्ड और अ शॉर्टर फ्रेज that performs the same function in the sentence, that group is single constituent. Okay, I tell you what is this. Ran quickly away है ना, तो वो क्या कह रहा है? ran को तो आपने निकाल दिया, quickly away. टेस्ट क्या है? can we substitute the word, right, fled, because quickly away or fled by the whole unit. Yes, the old man fled, right. So the old man fled, भाग गया वो आदमी, quickly away, right. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि टेस्ट, ये तो ठीक है. फिर टेस्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट ran फॉर ran quickly away. yes, ran और ran quickly away, yes, but we lose information. तो क्या करेंगे? बेटर टेस्ट क्या लगाएंगे? कैन वी सब्स्टिट्यूट अ सिंपलर वर्ब फॉर ran, द ओल्ड मैन वॉक्ड क्विकली अवे, है ना. तो कह रहे हैं वो कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि वॉक क्विकली अवे. तो टेस्ट फॉर द एडवर्बियल, कैन वी सब्स्टिट्यूट अ सिंगल एडवर्ब फॉर क्विकली अवे. ये सारे टेस्ट लगा रहे हैं हम. स्विफ्टली लगा दिया मान लो, सो द ओल्ड मैन ran swiftly, right.
तो इन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स द डिवीजन यूजुअली फॉलोज द रूल ऑफ प्रेडिकेशन फर्स्ट, है ना। वो क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में डिवीजन किसको फॉलो करता है, रूल ऑफ प्रेडिकेशन। तो ये रेन क्विकली, है ना, तो क्विकली अवे, क्विकली क्या है, क्विकली एंड अवे, एडवर्ब प्लस एडवर्ब, ऐसा। तो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेडिकेशन और मॉडिफिकेशन क्या है, लुक फॉर कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टू गाइड यू कट्स। सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले राइट एरो लगाओ और नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में डिवाइड कर दो, पुअर जॉन रन्स, ठीक है। फिर नाउन फ्रेज डिटर्मिनर, है ना, नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर है तो उसको अलग कर दो, द ओल्ड मैन, राइट, एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन, तो पुअर जॉन रन्स अवे, ये हो गया द ओल्ड मैन, राइट, ओके। देन रेन क्विकली अवे, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। फिर प्रीपोजिशन ओवर द डॉग, वो ये बता रहे, देखो किसको नाउन फ्रेज कहते हैं किसको वर्ब फ्रेज कहते हैं, वो बता रहे हैं। सेंटेंस में नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज, है ना, कैसे उसको वो करते हैं, अगर यहाँ पे वो प्रीपोजिशन है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, उसमें साथ में नाउन फ्रेज अटैच है। अगर यहाँ पे वर्ब है तो ये क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट, ये तो ये है ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल्स, ये है ना, लेकिन ये क्या है, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। अगर यहाँ पे ओल्ड मैन है तो ये क्या है, एडजेक्टिव एंड नाउन है ना, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है वो कि ये द ओल्ड मैन, ये नाउन फ्रेज हो गया, ऐसा। तो एग्जाम्पल वॉक थ्रू, लेट्स एनालाइज द सेंटेंस, द स्मॉल चाइल्ड ब्रोक द वुडन टॉय। सेंटेंस का कट कैसे लगेगा, ये सेंटेंस है, नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज, है ना, तो द स्मॉल चाइल्ड, यहाँ से द स्मॉल चाइल्ड ब्रोक द वुडन टॉय, ये हमने पहला कट लगाया, द स्मॉल चाइल्ड नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज ब्रोक द वुडन टॉय। अब इसको एनालाइज करते हैं एनपी को, तो द और स्मॉल चाइल्ड, द और स्मॉल चाइल्ड, द क्या है, डिटर्मिनर है, स्मॉल चाइल्ड ये क्या है, नॉमिनल है। एनालाइज नॉमिनल, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि स्मॉल है और चाइल्ड है ना, तो ये कट हो गया। तो इसको एडजेक्टिव, इसको ऐसे भी कर सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, और फिर आपने एडजेक्टिव एडजेक्टिव को किया और ये नाउन, ठीक है। फिर वर्ब फ्रेज को करेंगे, तो वर्ब फ्रेज क्या है, ब्रोक द वुडन टॉय, ब्रोक, है ना, द वुडन टॉय, तो ब्रोक ये वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब निकाल दिया आपने, और वुडन टॉय नाउन फ्रेज हो गया, फिर नाउन फ्रेज को कर लिया। एनालाइज ये द और वुडन, राइट। एनालाइज फाइनल नॉमिनल, वुडन टॉय, वो कर दिया ना, वुडन टॉय, तो वुडन एडजेक्टिव है या क्लासीफायर है, और टॉय है, ये हो गया। इस तरह से है, हो सकता है इस वीडियो में अभी आपको बहुत क्लियर नहीं हुआ हो, मैं अभी आईसी एनालिसिस के और भी वीडियो बना रही हूँ, और फिर मैं खुद का अपना एक और वीडियो जिसमें बोर्ड को यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैंने ये टेक्स्ट की हेल्प ली है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।